Hi guys, I hope you are doing good. Finally, the ICSI CS Professional June 24 exams are over, and now it is important for you to evaluate yourself in terms of what you have done in the exams, as it will help you plan your upcoming days accordingly. To help you with that, in this video, I am discussing June 24 GRMC paper and the probable answers to the questions. Also, the purpose of this video is not to create fear or negativity among the students with respect to whether they will clear the exam or not. The only purpose of this video is to help you get a fair idea about your performance so that you can work accordingly. So without wasting any time, let's get started. After successfully conducting test series for the last two attempts, we are soon coming up with a bunch of things for December 24, including test series and revision videos. The enrollments for CS Professional New Syllabus and CS Executive New Syllabus test series will tentatively commence from 15th July onwards, and for CS Professional Old Syllabus from 1st of September onwards. If you have any inquiries with respect to the test series, please feel free to reach out to us at the number visible on the screen. Also, while watching the video, if you find the video helpful, please make sure to hit the like button so that YouTube shares this video with other students and they also get benefited from this video. In the month of May, Siddharth Sharma and I created a must-see topics document for all the 7 main subjects of CS Professional Old Syllabus, and we shared this document with the students through LinkedIn. And very humbly, I would like to tell you that 84 marks GRMC paper comprises of the topics which we highlighted as must-see topics in that document, and I will show you the same in this video. So wherever MST has been written corresponding to the question, it means that particular question has been asked from the must-see topics. सो ये आपका जीआरएमसी का पेपर है। ये मस्ती टॉपिक्स का डॉक्यूमेंट है और ये मैंने मॉड्यूल ओपन करके रखा है, जो भी आंसर्स वगैरह जहाँ से भी आपको लिखने थे वो बताने के लिए। सबसे पहले इसके अंदर आप देखो, जो आपको क्वेश्चन दिया है वो आपका रिलेटेड था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से। ये इसके अंदर इन्होंने क्या बोला यार कि XYZ लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है जिसके अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, डिवाइडेड इन इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। 70% पेड अप इक्विटी ऑफ XYZ लिमिटेड इज हेल्ड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। मार्केट प्राइस शेयर की आपको दी हुई है 524 पर शेयर। बोला मिस आर एक लोकल पॉलिटिकल लीडर है और रिसाइड करती है इन द सिटी जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। उसके पास में 1000 शेयर्स है कंपनी के अंदर। शी नोटिस दैट कंपनीज बोर्ड इज नॉट हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। शी obtained a list of the members of the company and individually sent letters to few of them to propose her name as a small shareholder director in XYZ Limited for protecting the interest of minority shareholders. AGM जो है कंपनी का is scheduled to be held on 25th August 23. Miss R sent a notice to the company well before the date of AGM containing the proposal for her appointment as a small shareholder director. This proposal was sent along with the requisite documents duly signed by some of the small shareholders for her election. अब आपको बोला कि रेफरिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, आपको ये बताना है कि जो मिस आर है वो एलिजिबल है नहीं फॉर अपॉइंटमेंट एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये आपको आया था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जो आपका किस चैप्टर में दिया है, बोर्ड इफेक्टिवनेस के अंदर जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 88 से आया था। सबसे पहले मॉड्यूल में चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 88 रहा। ठीक है, अब इसके अंदर, ठीक है, आप सबसे पहले ये जानते हो कि यार ये जो भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटी या लिस्टेड कंपनी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये वाली चीज पे टिक बॉक्स लग रहा है, द आंसर इज यस। ठीक है, तो ये तो पूरा हो रहा है कि यार लिस्टेड एंटिटी का केस है। सेकंड चीज इसके अंदर आपको ये देखनी थी कि जो भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है वो खुद भी स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है वो खुद भी स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए। तो मिस आर जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर है नहीं है, तो आप कैसे देखोगे, आपको नॉमिनल वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉमिनल वैल्यू जो है आपकी वो 20,000 रुपीज जो है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 20,000 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल वैल्यू, जो 1000 शेयर्स है मिस आर के पास, मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो मल्टीप्लाई करा तो कितना है 10,000, इसका मतलब है कि यार ये स्मॉल शेयर होल्डर है, ये वाला बॉक्स भी टिक हो जाता है। ठीक, अगली बात ये कि क्या मिस आर खुद ही से लिस्ट निकाल करके और शेयर होल्डर्स जो भी है उनको उसका नाम प्रपोज करने के लिए ऐसे लेटर्स भेज सकती है क्या, द आंसर इज यस। ठीक है, वैसा कर सकते हैं, ये आपको इस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक और डॉक्यूमेंट स्मॉल शेयर होल्डर के ऊपर आईसीएसआई का ये डॉक्यूमेंट कंपनी लॉ कॉर्नर के अंदर इन्होंने दिया था कि कैसे स्मॉल शेयर होल्डर जो इंटरेस्टेड स्मॉल शेयर होल्डर है, जो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो कैसे दूसरे शेयर होल्डर्स जो है उनके बारे में पता कर सकता है। तो शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिससे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड स्मॉल शेयर होल्डर है कि उनको डिटेल्स मिल जाएंगी अदर स्मॉल शेयर होल्डर्स की, और फिर वो उनको भेज सकते हैं कि यार मेरा नाम प्रपोज कर दो। तो ये वाली चीज भी सही करी है। ठीक है, ये चीज भी गलत नहीं करी है। ठीक है, मिस आर ने ये चीज भी सही करी है, तो ये भी टिक बॉक्स लग गया इस पे भी। ठीक है, उसके बाद अगली चीज इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको नोटिस जो है वो भेजना होता है। ठीक है, नोटिस आपको भेजना होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोटिस ऑफ इंटेंशन टू प्रपोज अ कैंडिडेट। ठीक है, ये आपको टाइमली मैनर में जो है भेजना होता है। ठीक है, साइंड नोटिस होना चाहिए उनके इंटेंशन का विद द कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग अंडर देयर सिग्नेचर स्पेसिफाइंग डिटेल्स एंड प्रपोज डायरेक्टर्स डिटेल्स। ठीक है, तो क्या ये चीज भी सही तरीके से करी गई है, द आंसर इज यस। मिस आर जो है नोटिस भेजा कंपनी को वेल बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये लिखा है ना वेल बिफोर द डेट ऑफ एजीएम, और जब आगे यहाँ पर लिखा है बाय सम ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर, तो आपको यहाँ पर ये प्रोविजन से लिख के आने थे कि ये जो अगर ये जो नोटिस है ये 14 डेज पहले भेजा गया। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो सम ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर लिखा है, अगर ये सम ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, मिनिमम
कितने हैं, मिनिमम है आपके जो यहाँ पर दी हुई आपको लिमिट 1000 और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर व्हिचएवर इज लोअर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टिक बॉक्स लग जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो पूरी हो रही है इसके अंदर। ठीक है, यही चीज आपको इसके अंदर बता करके आनी थी, और फिर उसके बाद में आपको लास्ट में लिखना था कि यस मिस आर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एमएसटी के अंदर से ही आया था। एमएसटी के अंदर अगर मैं आता हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसमें पेज नंबर 88 पे आपको ये जो है दिया हुआ है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट, ये वाला स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा उन्होंने वो ये पूछा कि मिस्टर पी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन वेल नोन होम अप्लायंस लिमिटेड। हिज परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस जो डिन के अंदर मेंशन करा गया है, ठीक है, वो है मुंबई का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही रिसाइड्स विद हिज सन एट नागपुर टू टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस। यू आर द सीएस ऑफ वेल नोन होम अप्लायंस लिमिटेड। मिस्टर पी आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप नोटिस भेजो उनको, ठीक है, फोर्थ कमिंग मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एट द नागपुर एड्रेस ऑफ हिज सन। ठीक है, टिल फर्दर इन्फॉर्मेशन स्टेट योर कोर्स ऑफ एक्शन एट द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर पी। ठीक है, तो ये जो आपका आया था क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में पेज जो है 122 है आपका, यहाँ पे आप आ जाओ 122 पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि नोटिस कहाँ पे भेजना होता है। तो यार नोटिस जो है वो भेजना होता है टू द पोस्टल एड्रेस या ईमेल एड्रेस जो कि रजिस्टर्ड करा गया बाय द डायरेक्टर विद द कंपनी। या अगर ये नहीं है, पोस्टल एड्रेस नहीं है, ठीक है, या फिर ईमेल एड्रेस नहीं है, तो उस केस में इन द एब्सेंस ऑफ सच डिटेल्स और एनी चेंज देयर टू एनी ऑफ सच एड्रेस जो कि अपीयर हो रहा है दिन के अंदर। ठीक है, दिन में जो भी एड्रेस अपीयर हो रहा है, तो अभी हमारे केस में दिन में कौन सा, मुंबई वाला अपीयर हो रहा है, प्लस जो पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, वो उन्होंने नागपुर का तो प्रोवाइड करके रखा नहीं है। ठीक है, तो ये मानते हुए कि उन्होंने पोस्टल एड्रेस नागपुर का जो है वो रजिस्टर नहीं करवाया। ठीक है, और दिन में जो है वो मुंबई का ही मेंशन है, तो मुंबई ही आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा। आप नागपुर जो है नोटिस नहीं भेज सकते। ठीक है, उसमें यही वाली बात, यही वाला प्रोविजन आपको लेकर के आना है। इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यार डायरेक्टर जहां बोलता है वहां नोटिस भेजना पड़ता है, नहीं, डायरेक्टर जिस मोड से नोटिस भेजने को बोलता है वो मोड आप जरूर यूज कर सकते हो। जैसे अगर डायरेक्टर ने बोला कि यार मेरे को आप यहाँ पर लिखा है ना इस वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस वाले बॉक्स में लिखा है कि अगर डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर बोलते हैं कि यार उसको सारे नोटिस भेजे जाए कुरियर के थ्रू। ठीक है, तो आप जो है उसको कुरियर के थ्रू भेजोगे। ठीक है, लेकिन ये मोड की बात है। ठीक है, एड्रेस की जब बात आएगी कि किस एड्रेस पे भेजना है, तो एड्रेस में तो वही पोस्टल एड्रेस या ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड है बाय द डायरेक्टर, या फिर अगर ये सब नहीं है हमारे पास में, कोई चेंज हो जाता है इसके अंदर, तो जो डिन के अंदर हमको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, एड्रेस उसी पे भेजेंगे। अब यहाँ पे डिन में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुंबई, और वो बोल रहे हैं कि नागपुर एड्रेस पे जो है भेज दो, तो ऐसा नहीं करा जा सकता। ठीक है, ये चीज नहीं हो सकती है, तो ये चीज आपको इसके अंदर लिख करके आनी थी। ये भी जो आपका क्वेश्चन आया था ये एमएसटी से आया था। ठीक है, सो इसके अंदर जो आपका ये मस्ती वाला है, यहाँ पर SS1 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड बोर्ड प्रोसेस टू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, इसमें जो हेडिंग डली हुई है SS1 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड बोर्ड प्रोसेसेस, ये तो बोर्ड प्रोसेसेस से ये क्वेश्चन आपको आया था। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है बोर्ड प्रोसेसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है वो था यहाँ पर एक बिलो एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जेड इन्फोटेक लिमिटेड का फॉर लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। इसको रेफर करके आपको बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशन करना है नहीं करना सीएसआर कमेटी का। ठीक है, जेड इन्फोटेक लिमिटेड पे रिक्वायरमेंट है नहीं कॉन्स्टिट्यूट करने की। ठीक है, ये चीज आपको जो इसके अंदर बतानी थी। तो यार ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका आया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बोर्ड कमिटीज वाला जो आपका चैप्टर है। ठीक है, 152 पेज नंबर 152 ये था। ठीक है, ये रहा। तो इस पे से आता है क्वेश्चन कि किन को बनानी पड़ती है, किन को कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी, ठीक है, जो कि फॉलोइंग क्राइटेरिया में से कोई सा भी क्राइटेरिया पूरा कर दे ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कोई भी ये क्राइटेरिया पूरा कर देते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है सीएसआर कमेटी ऑफ द बोर्ड, जिसमें 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, आउट ऑफ विच एक डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब वो क्राइटेरिया क्या है जो आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में पूरा करना है। नेटवर्थ जो है आपकी वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि क्या इनको बनाने की जरूरत है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, FY 24-25 के लिए बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो हम क्राइटेरिया देखेंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 23-24, जिसकी डिटेल्स आपको दी हुई है यहाँ पे 23-24 की। ये सारे फिगर्स करोड़ में दिए हैं। सबसे पहले दिया पेड अप कैपिटल है 200 करोड़, फ्री रिजर्व से 280 करोड़। तो इसको सम कर दोगे अगर आप तो नेटवर्थ आ जाएगी विच इज 480 करोड़। ये 480 करोड़ की क्या है, नेटवर्थ है। तो ये वाला क्राइटेरिया तो पूरा नहीं होगा क्योंकि नेटवर्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, दूसरा टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर नहीं है, 800 ही है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हो रहा है। बट जो नेट प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया, नेट प्रॉफिट वाले क्राइटेरिया में बोला है 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कितना दिया हुआ है आपको 35 करोड़। तो ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो प्राइमा फेसी अभी ऐसा लग रहा है कि यार कमिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है अब इसमें एक और चीज है जो आपको समझना है, वो ये है कि इसमें एक और चीज चेक करनी थी। वो क्या चेक करना था, वो नीचे दिया हुआ है आपको ये वाली चीज
कि क्या अमाउंट जो स्पेंड करना है कंपनी को, ठीक है, वो एक्सीड नहीं करता 50 लाख रुपीस को, ठीक है, कब? इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर जो उसको सीएसआर स्पेंड करना है, ठीक है ना, उसका अमाउंट 50 लाख से ज्यादा का है या 50 लाख तक है, 50 लाख से ज्यादा का या 50 लाख तक है, अगर उसका अमाउंट 50 लाख तक है, ठीक है, अगर वो एक्सीड नहीं करता 50 लाख रुपीस को, तो उस केस में ना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, और जो भी फंक्शंस होंगे सीएसआर कमेटी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। और ये बॉक्स जो है आपका, ठीक है, ये वाले बॉक्स में बताया हुआ है आपको कि ये जो आपको 50 लाख रुपए देखने हैं, ठीक है, ये पिछले साल की स्पेंड का देखना है या इस साल की स्पेंड का देखना है, तो उसने बोले कि सीएसआर ऑब्लिगेशन फॉर द प्रीवियस ईयर इज नॉट रेलेवेंट, प्रीवियस ईयर की सीएसआर ऑब्लिगेशन रेलेवेंट नहीं है 50 लाख को कैलकुलेट करते वक्त, जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी सीएसआर ऑब्लिगेशन कितनी आ रही है कंपनी के ऊपर वो चेक करना है। वो 50 लाख तक है अगर, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बनाने की, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे यार, आपको पता है कि सीएसआर जो है वो कितना करना होता है, ठीक है, सीएसआर कितना स्पेंड करना होता है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है ना, नीचे एवरी फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आ जाओ, तीन पिछले जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ठीक है, उसका जो नेट प्रॉफिट उसका एवरेज निकालना है। तो पिछले तीन कौन से हो जाएंगे, 35, 30 और 15, है ना, इसका आप एवरेज निकालोगे, इनका अगर समेशन करते हैं हम तो ये हो जाएगा 80, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26.67, ठीक है। अब ये आपके पास में आ गया एवरेज नेट प्रॉफिट। अब इस एवरेज नेट प्रॉफिट का आपको क्या करना है, आपको निकालना है 2%, ठीक है, कितना दिया हुआ यहाँ पे 2%, एटलीस्ट 2%, तो 2% निकालेंगे 26.67 करोड़ का, तो 2% आप निकालोगे अगर तो ये आएगा 53 लैक्स, 53.33 लैक्स को आएगा ये, ठीक है, 53.33 लैक्स आएगा ये, इतना जो है उसकी ऑब्लिगेशन आ रही है स्पेंड करने की, ठीक है, कौन से ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। बस, तो आपको पता है 50 लाख से ज्यादा, इसका मतलब सीएसआर कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, इतना सब कुछ बस बता के आना था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका, ठीक है, अगला वाला पॉइंट, अगला वाला है कि ऑडिट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन था यार ये, कि टू मीट आउट द सीजन डिमांड द मैंगो एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, ध्यान दो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ये, अवेल्ड अ कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 65 करोड़ अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ इट्स बुक डेट्स इन नवंबर 23 फ्रॉम द ट्रू बैंक्स लिमिटेड, ठीक है, कैश क्रेडिट की लिमिट लिया उन्होंने 65 करोड़ की अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ इट्स बुक डेट्स, किससे लिया, ट्रू बैंक्स लिमिटेड से, ठीक है। अब कंपनी पेड ऑफ ऑल इट्स ड्यू टुवर्ड्स द कैश क्रेडिट लिमिट इन February 24, एज अ रिजल्ट द आउटस्टैंडिंग लोन्स 31/3/24 को क्या थे, निल थे, ठीक है। सो सारा पैसा भी वापस कर दिया यार 31 मार्च 24 को जो आउटस्टैंडिंग है लोन की वो क्या निल है, मतलब कोई भी लोन का अमाउंट नहीं है हमारे ऊपर। उसके बाद में क्या दिया गया, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 24, एक्सट्रैक्ट दिया आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, पेड अप कैपिटल 9 करोड़ है, फ्री रिजर्व्स 35 करोड़ के हैं, टर्नओवर जो है वो 90 करोड़ है। मिस्टर एक्स हु इज द कॉर्पोरेट लॉयर एंड एडवाइजर ऑफ द कंपनी, उन्होंने एडवाइस करा है, ठीक है, बोर्ड ऑफ द कंपनी को टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी टू द बोर्ड, ऑडिट कमिटी बनाई जानी चाहिए, उनका ऐसा कहना है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, ऑडिट कमेटी जो है वो क्रिएट करनी है, सिंस द कंपनी हैज अवेल्ड कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 65 करोड़, क्योंकि कंपनी ने 65 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो अवेल करी है, तो उसको ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए। द बोर्ड इज नॉट श्योर अबाउट द एडवाइस ऑफ मिस्टर एक्स एंड वो आपकी एडवाइस सीख कर रहे हैं विद रिगार्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमेटी इन द कंपनी, इस पे कमेंट करो। तो ये आपको आया था ऑडिट कमेटी में से, ठीक है, ऑडिट कमेटी का जो है आपका ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 142 के ऊपर, इसी चैप्टर से ये भी, ठीक है, 142 के अंदर आ जाते हैं। अब यार देखो इसके अंदर ना ये जो आपको दिया हुआ है 142 से मतलब स्टार्ट हो रहा है ऑडिट कमेटी वाला, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा है कि जो भी, देखो हमारी जो कंपनी है, ठीक है ना, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो हमको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो होती है, ये जो रूल 4 के अंदर बताया हुआ है कि किन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को बनानी पड़ती है, उसकी बात करनी है मेन। तो सारी पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, ठीक है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है उनको, तो अब यहाँ पर ये तो पूरा हो नहीं रहा है क्योंकि पेड अप कैपिटल 9 करोड़ है, ठीक है, तो ये तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। सेकंड है सारी पब्लिक कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ये टर्नओवर वाला जो क्राइटेरिया है ये भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि 90 करोड़ है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है जिसका इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग्स या डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स एक्सीड कर रहे हैं 50 करोड़ रुपीज और मोर को, तो इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये मीन है, इसमें बोला है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर या आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग या डिबेंचर या डिपॉजिट्स वगैरह आपको देखना है, ठीक है, ये आपको देखना है एज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन करोगे जो ये वाली चीजें। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा कि जो आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग का या डिबेंचर डिपॉजिट्स वगैरह का जो भी अमाउंट वगैरह है, ठीक है, वो एट एनी पॉइंट इन टाइम क्रॉस कर गया हो 50 करोड़ रुपीज या मोर को, ठीक है। तो अगर लास्ट ऑडिटेड के अकॉर्डिंग में जाऊं, लास्ट ऑडिटेड के अकॉर्डिंग यानी 31 मार्च की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, 31 मार्च के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, 31 मार्च के दिन जो बैलेंस है वो नील था, ठीक है। उसके पहले नो डाउट उन्होंने लिया था
बट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ टच हो जाती है लिमिट, उसी के बेसिस पे ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका एग्रीगेट में आउटस्टैंडिंग लोन, बोरिंग, डिबेंचर, डिपॉजिट्स एक्सीड करे 50 करोड़ रुपीज और मोर को, और ये कब देखना है आपको, एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो 31 मार्च का आपका खत्म हो रहा है, 31 मार्च के दिन ही, ठीक है, आपका बैलेंस जो है वो नील है। अगर आपका बैलेंस नील है तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा नहीं होगा, और ये वाला क्राइटेरिया भी क्योंकि पूरा नहीं हो रहा है इसीलिए आपको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप आगे देखते हो कुछ जगह पे, जैसे अगर मैं सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करूं तो सेक्रेटरियल ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं ना कि वाला सब लिमिट्स वगैरह, आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह, तो वहाँ लिखा है एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम करके ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि पिछले साल का हम देखेंगे, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है। लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, वो तो बात समझ में आती है कि यार ऑब्वियसली पिछले साल के देखेंगे, लास्ट ऑडिटेड का मतलब ये हुआ। बट एनी पॉइंट इन टाइम वाली बात यहाँ पर नहीं लिखी। अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम वाली बात लिखी होती तो ऑब्वियसली नवंबर के अंदर, ठीक है, नवंबर 23 यानी 23-24 के अंदर, ठीक है, आपका जो अमाउंट है वो ऑब्वियसली 65 करोड़ जो स्टैंड करता था, तो एनी पॉइंट इन टाइम मतलब आप टच कर जाते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती, अगर ऐसा लिखा होता प्रोविजन में। ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ ये बात लिखी है कि लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देख लो कि आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह कितना है, हमको दिखाई दे रहे हैं नील है। ठीक है, फरवरी में ही उन्होंने नील कर दिया इसको। ठीक है, कंपनी ने पेड ऑफ कर दिया सारे ड्यू टुवर्ड्स द क्रेडिट लिमिट इन फरवरी 24 इटसेल्फ, और 31/3/2024 का बैलेंस देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, नीला है। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऑडिट कमेटी की जो रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये पूरा आपको इसके अंदर लिख करके आना था। ये भी आपका जो क्वेश्चन आया था ये मस्ती टॉपिक्स में से ही आया था। मस्ती टॉपिक्स में बोर्ड कमिटीज के अंदर जो पूरा ऑडिट कमेटी वाला आपको दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको आया था वो था Fair Deal Private Limited has two directors on its board. The company was incorporated in 2014-15 and the registered office of the companies in Delhi. Both of the directors of Fair Deal Private Limited generally resides in New York and visit India on time to time basis. Financial year 23-24 में Mr. X, who is one of the directors of the company, वो इंडिया आया ही नहीं है। ठीक है, while Mr. Y जो है, who is the other director, वो इंडिया में जो स्टे कर रहा है ड्यूरिंग 1 अप्रैल 23 to 5 अक्टूबर 23। ये एनालिसिस करना था कि whether the company has complied with the provision of section 149(3) of the Companies Act and a रेसिडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन से कंप्लाई करा नहीं करा। तो इसके अंदर तो अगर आप प्रोविजन देखते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बुक में ये। ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन था। इसमें बोला है कि 149(3) के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो कि स्टे करे इंडिया में फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, यानी मिनिमम 182 डेज के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब ये आगे की बात तो काम की नहीं है क्योंकि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। ठीक है, जो केस है वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का नहीं है, तो आगे की बात एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बस इसके अंदर यार आपको लिख करके आना था, और फिर उसके बाद ये पीरियड काउंट करना था कितना है ये। तो अगर आप काउंट करोगे तो 188 डेज निकल करके आएंगे। ठीक है, जो कि इसका मतलब है कि कंप्लायंस जो है वो हो गया 149(3) से। बस ये वाली बात लिख करके आनी थी इसके अंदर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो था मेजर्स XYZ लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ मेजर्स NMF लिमिटेड व्हिच इज अ प्रोमिनेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी एंड ओन्स मेनी बिग ब्रांड्स। Measures XYZ has entered into an agreement with NFM for sale of the products under the brand name of Measures NFM Limited. In exchange of this, XYZ will pay 8% of the sales value of Measures NFM Limited as royalty. During the financial year 23-24, Measures XYZ Limited consolidated turnover was rupees 7,000 crore and it has paid rupees 400 crore as royalty to Measures NFM Limited. एग्जामिन की जो रॉयल्टी पेमेंट है इसको मटेरियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आया था चैप्टर नंबर 7 से, जिसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पेज नंबर 220 ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि कब एक ट्रांजैक्शन को विद रिलेटेड पार्टी मटेरियल माना जाएगा। तो इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है कि अगर ब्रांड यूसेज या रॉयल्टी का पेमेंट होता है तो उसको मटेरियल माना जाता है जब वो एक्सीड कर जाए 5% को, एक्सीड कर जाए 5% को ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर जो है उसके 5% से भी अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या मानते हैं, मटेरियल ट्रांजैक्शन जो है वो मानते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड टर्नओवर दिया हुआ है 7,000 करोड़, तो 7,000 करोड़ का आपको 5% निकालना है। 7,000 करोड़ का अगर आप 5% निकालोगे, ठीक है, तो वो निकल करके आएगा 350 करोड़। अब जो एक्चुअल पेमेंट है वो 400 करोड़ का हुआ है, तो ऑब्वियसली 350 करोड़ यानी 5% से क्या ज्यादा है, तो ये मटेरियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो यही आपको बस इसमें कोट करके आना था पूरा, और फिर उसके बाद में ये प्रोविजन लिखने के बाद वो कैलकुलेशन आपको शो कर देनी थी। अब ये भी जो क्वेश्चन आया था ये एमएसटी के अंदर से ही आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एमएसटी के अंदर से आया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये प्रोविजंस अंडर सेबी रेगुलेशन 2015 वाला पॉइंट है ना 220 के ऊपर, ये प्रोविजंस अंडर सेबी रेगुलेशंस, यहीं से क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया है कि Mazars TTQ is a listed company and it is involved in business of manufacturing soaps and detergents. मार्केट वैल्यूएशन अप्रॉक्स 7,000 करोड़ है और मार्केट वैल्यू एक शेयर की 80 पर शेयर है। 3 एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं।
It has recently appointed Mr. Saral Singh as its director. Mr. Saral Singh is an expert in the field of chemistry and he is associated with the company for last 20 years as an employee. ठीक है, पिछले 20 सालों से as an employee हुआ है. The company wants to reward Mr. Saral Singh for the know-how he has brought to the company and wants to issue 50,000 equity shares to Mr. Saral Singh at a discounted price of rupees 15 per share. To examine करना in view of applicable provision of Companies Act and state whether the issue of equity shares at a discounted price to a director is allowed. If yes, state the disclosure required in the board report for such issue of shares. तो यार ये sweat equity shares की बात हो रही है. ठीक है ना, नो हाउ वगैरह के लिए जो आप देते हो डायरेक्टर्स वगैरह जो भी होते हैं उनको, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करे जा सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको एक चीज इसमें लिख करके आनी थी. आया था ये चैप्टर नंबर 6 से. ठीक है, और आपको बताना था डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने होते हैं बोर्ड रिपोर्ट में इसको लेकर. तो इसको लेकर के चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 175 यहाँ पर आपको दिया हुआ है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करना होता है डायरेक्टर रिपोर्ट में ये सारी चीजें, फॉलोइंग डिटेल्स. तो ये आपको लिख करके आना था इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है वो था Mazars Zeta Limited is a listed company engaged in the business of manufacturing electronic components. Company has an item having book value of rupees 500 crore in its balance sheet as a part of its assets. As per applicable accounting standard, company needs to fully amortize this asset in the current financial year. But the company's management is having a view that this asset item should be amortized in 5 years and not fully in current year. You are the CS and the company wants your view whether this can be done. कैसा करा जा सकता है? तो ये भी आपसे चैप्टर नंबर 6 से ही पूछा था. ठीक है, 189 पे दिया हुआ है. 189 पे यही नीचे ही दिया हुआ है. ये रहा. ठीक है, ये एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर दी हुई है चीज कि क्या क्या एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होता है. बेसिकली एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है उसी में वाला पॉइंट आपको दिया है. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में ट्रीटमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रिस्क्राइब्ड इन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन फॉलोड. फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद द मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई इट बिलीव्स की अल्टरनेटिव जो है ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अंडरलाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो यही आपको लिख करके आना था और ये फिर कंक्लूड करना था कि यस ऐसा करा जा सकता है. बस एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि यार क्यों आपने ट्रीटमेंट दिया है. ठीक है, तो ये भी जो है आपका एमएसटी के अंदर से आया था. जो इसका पेज नंबर 6 वाला है. ठीक है, 6 के अंदर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या करने होते हैं और सेबी के अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने होते हैं. तो ये वाला जो था आपका ये आ जाएगा रेगुलेशन के अकॉर्डिंग. ये ठीक है ना, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं तो सेबी वाले के अंदर ये फॉलो हो जाएगा. सेबी वाली जो रेगुलेशंस हैं उसी के अंदर दिया हुआ है ये अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस और उसी के अंदर से आपको पूछना है. उसके बाद एज पर ओईसीडीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क it should ensure timely and accurate disclosure on all the material matters regarding the corporation including the financial situation, performance, ownership and governance of the company. Comment. तो ये जो क्वेश्चन है ठीक है ये आपका है चैप्टर नंबर 1 से. चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 30 जो है उस पे दिया हुआ है आपको. यहाँ दिया हुआ है ओईसीडी के प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इसके अंदर जो लास्ट इधर यहाँ पॉइंट दिया है ये वाला डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, यही लाइन आपको उन्होंने लिख करके दे दी पूरी. The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all the material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership and governance of the company. तो आपको यही चीजें बता करके आनी थी इसके अंदर. ये इसका पूरा आंसर था. ये भी आपका जो है एमएसटी के अंदर से आया. एमएसटी के अंदर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो 30 पेज नंबर पे आपको ये दिया हुआ है चैप्टर नंबर फर्स्ट. चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप ये देखो ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर से क्वेश्चन आपको पूछ लिया उन्होंने. फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन था वो था मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ फेयर डील इंश्योरेंस लिमिटेड व्हिच इज अ न्यूली फॉर्म्ड इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया. आप सीनियर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो एंड एंगेज्ड हो विद फेयर डील इंश्योरेंस कंपनी एज अ कंसल्टेंट. मिस्टर एक्स जो है वो चाहते हैं कि आप कंपोजिशन बोर्ड का जो है ठीक है उसका एनालिसिस करो एंड एज अ कंसल्टेंट ऑफ फेयर डील इंश्योरेंस लिमिटेड व्हाट फैक्टर विल यू कंसीडर जब आप एनालिसिस करोगे बोर्ड कंपोजिशन का फेयर डील इंश्योरेंस कंपनी. तो इंश्योरेंस से रिलेटेड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में. ठीक है, पेज नंबर 53. पेज नंबर 53 पे ये आपको जो है दिया हुआ है. ये रहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. इसके अंदर बोर्ड कंपोजिशन वाला पॉइंट दिया हुआ है आपको. ये तो ये सारी चीजें आपको लिख करके आनी थी इसके अंदर कि ये चीजें देखेंगे ये चीजें इंश्योर करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ साबनीज ऑक्सली एक्ट 2002 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स. ये आपका आया था जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसी के अंदर से. ठीक है, पेज नंबर 222 यहाँ पर. ये रहा विसल ब्लोइंग को लेकर के साबनीज ऑक्सली के अंदर क्या लिखा है ये सारे पॉइंट्स लिख के आने थे इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद अगला जो था वो था एक्सप्लेन अबाउट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 11 से आया है. चैप्टर नंबर 11
ये रहा चैप्टर नंबर 11 में NFCG का ही दिया हुआ है आपको, और इसके ट्रस्टी जो है वो भी आपको बताए गए हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, है ना, यही पूछा ना इन्होंने, एक्सप्लेन अबाउट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कौन कौन मेंबर्स हैं, ये है द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आर, ये पूछा आपसे इन्होंने। ये भी जो है ये MST में से आया आपका जो पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप आओ चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये रहा एनएफसीजी। उसके बाद एक्सप्लेन द केसेस इन विच मेंबर्स और डिपॉजिटर्स ऑफ अ कंपनी कैन फाइल फॉर क्लास एक्शन सूट, है ना, बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो वो केसेस समझाने थे। तो ये जो आपको क्वेश्चन आया, ये आया है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट का जो चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर से ये क्वेश्चन बन के आया आपको क्लास एक्शन सूट का, पेज नंबर है 243 इसी के अंदर होगा ये 243 में। ये रहा यहाँ पर, है ना, 243 क्लास एक्शन सूट। तो कब कब फाइल कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज आपको इसके अंदर बता करके आनी थी पूरी। इवन RCD के अंदर भी आप काफी कुछ पढ़ते हो इससे रिलेटेड। उसके बाद जो अगला पॉइंट पूछा था वो था डिस्कस द रोल ऑफ प्रॉक्सी एडवाइजर्स इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये आपका आया है प्रॉक्सी एडवाइजर्स वाला जो क्वेश्चन है, पेज नंबर है 257, सॉरी 257 ये रोल ऑफ प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, ठीक है 257। ये पूरा आपको लिख के आना था, फॉलोइंग आर द फ्यू रीजंस कि उनको एंगेज करा जाता है, और ये पूरा पॉइंट मतलब ठीक है, जो भी मतलब इसमें काम की चीजें हैं ये वो, और ये सारे पॉइंट्स कि क्या उनका रोल होता है बेसिकली इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये वाला भी आपको क्वेश्चन जो है MST में से आया है, ठीक है। अगर इसके अंदर हम आते हैं, जो आपका 9th वाला चैप्टर है, सॉरी 8th वाला जो चैप्टर है, 8th वाले में रोल ऑफ प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेबसाइट डिस्क्लोजर, जो CBLODR के अंदर, ये चैप्टर नंबर 6 है आपको, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 193 यहाँ पे ये रहा वेबसाइट डिस्क्लोजर, ये आपको लिख करके आने थे, ये भी MST में से आया है। इसको अगर देखें चैप्टर नंबर 6 के अंदर वही CBLODR के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये CBLODR की जो है पार्टी है, ठीक है, रेगुलेशन नंबर 46 CBLODR। उसके बाद में ये आपका पूरा है पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट। उसके बाद पार्ट सेकंड पे अगर आए तो पार्ट सेकंड के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया था उन्होंने, केस स्टडी टाइप दिया था, और उसमें आपसे पूछा था कि क्या रिस्क जो है, ठीक है, वो फेस कर रहा है, एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ रिस्क द कंपनी हैज फेस्ड एंड व्हाट मेजर्स यू वुड सजेस्ट टू मिटिगेट सच रिस्क। तो जब आप इसको पढ़ते हो क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ काम की लाइनें क्या है कि कंपनी वाज फेसिंग अक्यूट शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी सिंस द रेवेन्यू अर्न्ड बाय वन आउटलेट वाज being deployed in opening the new store and so on, and sometimes the company was not able to pay off to the suppliers for the raw material supplied, and salary payment to the employees remained overdue for 2-3 months. And फिर उसके बाद में कंपनी का बैलेंस शीट was showing a good amount of fixed assets in building, and the P&L account was also showing reasonable profits, but the promoters were forced to shut down all the new kitchens in spite of solvency and profitability of the business. तो इसके अंदर लिक्विडिटी रिस्क जो है वो कंपनी फेस करती है, पढ़ते भी हो यार, सॉल्वेंसी लिक्विडिटी वाला भी यहाँ पे पॉइंट देखिए, दोनों अलग अलग बातें होती है। और इसके बाद मिटिगेट करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, तो यही सजेस्ट करेंगे कि जो बहुत ज्यादा फिक्स्ड असेट्स आपने रख करके रखे हैं, इसकी जगह आप क्या रखो, नियर कैश असेट्स जो होते हैं, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाए, उस तरीके के असेट्स जो है वो आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपको चीजें बता के नहीं कि पूरा लिक्विडिटी रिस्क समझाना था, और फिर उसके बाद में जो मिटिगेशन के मेजर्स हैं वो लिख करके आने थे, ठीक है। अब ये आया था आपका पेज नंबर 338 पर से, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क आपको दिया हुआ है, 338 पे आ जाते हैं। 338 के अंदर यहाँ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा लिक्विडिटी रिस्क के बारे में आपको दिया उन्होंने, ये पूरा लिख करके आना था आपको। ये क्वेश्चन भी MST से आया है, ये MST में क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क जो है वो बताया गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क वाला टॉपिक। उसके बाद में अगला जो है क्वेश्चन वो भी रिस्क से ही रिलेटेड है। इसके अंदर पेमेंट बैंक के ऊपर एक केस बनाया था, और उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या दो तरीके की रिस्क इसके अंदर ये बैंक जो है वो फेस कर रही है, और उनके बीच का कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन बिटवीन द टू रिस्क, ठीक है। तो इसमें ये लिखा था यार कि जो पेमेंट बैंक है, ठीक है, वैसे पेटीएम के साथ जो हुआ था ना केस, उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके इन्होंने क्रिएट कर दिया कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूपीआई सर्विसेज टू द कॉमन मैन, उन्होंने अडॉप्ट करें इंटेंसिव मार्केटिंग एंड ओपन कर दिया अकाउंट्स इन गुड नंबर्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द केवाईसी, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, रेगुलेटर जो है, ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, उनको इरेगुलरिटी लगती है तो वो फाइन इंपोज करते हैं कंपनी के ऊपर एज वेल एज डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स के ऊपर, और टर्मिनेट कर देते हैं उनका लाइसेंस ऑफ MWL फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ द यूपीआई सर्विसेज, ठीक है। फिर ये जो न्यूज है पेनल्टी इंपोज वगैरह करने की, टर्मिनेशन की, ठीक है, ऑफ यूपीआई सर्विसेज बाय रेगुलेटर, ये लोगों के बीच में चली जाती है, तो लोग उनकी जो ब्रांचेस है उसके बारे में इकट्ठे हो जाते हैं, डिमांडेड फॉर क्लोजर ऑफ द कंपनी, रिफंड ऑफ देयर मनी। तो कौन सी दो तरीके की रिस्क इसके अंदर है, एक इसके अंदर है कंप्लायंस रिस्क, और दूसरी इसके अंदर है रेपुटेशन रिस्क, ठीक है। ये आपको बता करके आना था इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पर भी आते हो, यहीं पर आपको दिया हुआ है ये कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। ये कंप्लायंस रिस्क कब फेस करती है कंपनी, जब ब्रीच ऑफ लॉ करती है, रेगुलेशन करती है, विच द एंटिटी सपोज टू अदर, इट में रिजल्ट इन डेटोरिएशन ऑफ रेपुटेशन इन पब्लिक आई, पेनल्टी एंड पेनल प्रोविजन। तो जो एक पॉइंट इन्होंने आपसे पूछा है कि यार दो तरीके की रिस्क कौन सी है, वो एक्सप्लेन करो। तो पहले कंप्लायंस रिस्क बताना था, फिर रेपुटेशन रिस्क बताना था, फिर कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन ये कि यार अगर कंप्लायंस रिस्क आपकी ज्यादा है तो रेपुटेशन रिस्क जो है वो भी ज्यादा होगी,
कंप्लायंस रिस्क अगर ज्यादा है तो रेपुटेशन रिस्क भी ज्यादा होगी, बिकॉज कंप्लायंस रिस्क में क्या हो रहा है, आप पैनल प्रोविजंस वगैरह वॉयलेट कर रहे हो, अगर आप वो चीज करोगे उसकी न्यूज स्प्रेड होगी तो रेपुटेशन रिस्क भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है दोनों के बीच में। ये सिंपल आपको लिख करके आना था कि दोनों रिस्क के बीच में क्या है, डायरेक्ट कोरिलेशन है, ये आपको इसके अंदर बता करके आना है। उसके बाद में ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका यहीं पे आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क वाला जो पॉइंट है कि ये भी एमएसटी से आया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क से क्वेश्चन। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा वो पूछा रिस्क गवर्नेंस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या स्टेप्स ले सकते हैं बाय द बोर्ड टू अचीव रिस्क ओवरसाइट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपसे पूछा था, पेज नंबर 351 पे दिया हुआ है, ये रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, रिस्क गवर्नेंस का पूरा पैरा दिया, ये आपसे जो है पूरा पूछा था उन्होंने, और फिर उसके बाद में रिस्क ओवरसाइट वाले पॉइंट्स दिए कि रिस्क ओवरसाइट रिस्पांसिबिलिटी होती है पूरे बोर्ड की, उसको अचीव करा जा सकता है थ्रू अ रिव्यू मैकेनिज्म, जिसमें क्या क्या चीजें आती है। तो ये सब काम करके आप अचीव कर सकते हो। दोनों बातें आपको लिखनी थी, कुछ पॉइंट्स ऊपर से लिखने थे रिस्क गवर्नेंस के और फिर ये वाली बात लिखनी थी। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका एमएसटी से आया है। ठीक है, एमएसटी में अगर आप देखो यहाँ पर रिस्क गवर्नेंस, रिस्क गवर्नेंस। उसके बाद में नेक्स्ट जो इन्होंने आपसे बोला कि studies of the large public companies indicate that strategic risk contributes for more than half of the reasons attributable to decline in market capitalization of these companies. इसको ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करो मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड आल्सो प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था वही रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट का जो आपको पोर्शन दिया हुआ है, पीछे लास्ट में ये दिया हुआ है आपको स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से ये मीनिंग आपको लिख देना था। जो ये स्टेटमेंट भी आपको दिया था ना वो यही ऊपर से दिया है, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि largest public companies indicate strategic risk on account for approximately 60% of major declines in market capitalization। इसी का यूज करके वो स्टेटमेंट उन्होंने क्रिएट करा और आपसे पूछ लिया कि स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है। ये दूसरी चीज उन्होंने आपसे पूछी कि उसके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिस्क के तो ये एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आपको वही क्लासिफिकेशन के अंदर दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर भी स्ट्रेटेजिक रिस्क की डेफिनेशन दी है। यहाँ पर अगर आप देखो क्लासिफिकेशन, ये जो है आपका नॉन फाइनेंशियल रिस्क का, इसमें स्ट्रेटेजिक रिस्क वाला पॉइंट दिया, इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक रिस्क माइट अराइज फ्रॉम मेकिंग पुअर बिजनेस डिसीजन, सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, इनएडिक्वेट रिसोर्स एलोकेशन, फ्रॉम अ फेलियर टू रिस्पॉन्ड वेल टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजों से क्या होता है, रिस्क जो है अराइज होती है। तो इसी का यूज करके आपको जो एग्जांपल्स लिख देने थे और मीनिंग जो है वो आपको दिया हुआ है कि वो लिखना था। उसके बाद पार्ट थर्ड जो है, पार्ट थर्ड के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा वो ये पूछा कि मीनिंग क्या है इंटरनल कंट्रोल का एंड उसके लिमिटेशंस बताने हैं एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315। ये आपको आया था इंटरनल कंट्रोल वाला जो आपको चैप्टर दिया हुआ है, इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में पेज नंबर 364 एंड 370। ठीक है, यहाँ पर अगर आते हैं 364 पर, सो यहाँ ये डेफिनेशन दी आपको ऐसे 315 की बॉक्स के अंदर, ये आपको लिख करके आनी थी इसके अंदर, और फिर उसके बाद में लिमिटेशंस आपको दिए हुए हैं 370 के ऊपर। ठीक है, ये रहे 370 के ऊपर लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जैसा कि ऐसे 315 में बताए गए। ये 3 पॉइंट्स थे, ये 3 पॉइंट्स आपको लिख करके आने थे। ये वाला भी क्वेश्चन आपका एमएसटी से आया है। एमएसटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल में जो सबसे पहले आपका लिमिटेशंस किया, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, सो लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इसी के अंदर से आपसे पूछा है उन्होंने। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन जनरल द इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड ईच टाइप ऑफ कंट्रोल हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट लिमिटेशंस बताने थे जो ऑटोमेटेड आईटी कंट्रोल के लिमिटेशंस है। ये आपसे आया था 372 पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर आगे चलते हैं तो यहाँ ये था, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये जो आपका मेन हेडिंग है डिवीजन वाली, डिवीजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इनटू कंपोनेंट्स, उसी के अंदर ये एक पॉइंट दिया है आईटी आल्सो पोजेस स्पेसिफिक रिस्क टू एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल ये है लिमिटेशंस। ठीक है, ये है लिमिटेशंस ऑफ आईटी, ऑटोमेटेड आईटी कंट्रोल, तो ये आपको लिख करके आने थे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला आपसे पूछा उन्होंने गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस आर थ्री रिलेटेड फैसेट्स व्हिच एम टू एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एड्रेसेस अनसर्टेनिटी एंड एक्ट्स विद इंटीग्रिटी। कमेंट, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ये पूछा गया चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन, और ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 का इधर पूछ लेते हैं ये। ठीक है, पार्ट कई बार पार्ट सेकंड में भी पूछ लेते हैं और कई मतलब पार्ट बी में भी पूछ लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट वाले में, और कई बार पार्ट सी के अंदर भी पूछ लेते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, 317 पे दिया हुआ है, सेम लाइन इन्होंने कॉपी कर दी यहाँ पर, ये जो वहां दी हुई है 317, ये रहा चैप्टर नंबर 10 317 ना, ये बोला governance, risk management and compliance are three related facets that aim to ensure that an organization reliably achieve objectives, address uncertainty and act with integrity। तो ये इसके बारे में बता के आना चाहिए, गवर्नेंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है और कंप्लायंस क्या है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपसे पूछा हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज द इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इस पे कमेंट करने के लिए। तो ये रिपोर्टिंग वाले चैप्टर से आपसे पूछा उन्होंने, चैप्टर नंबर 14 से, है ना, यहाँ पर ये लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसमें लाइन दी है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इस लाइन को देकर के आपसे कमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, अब ये भी आपको जो है एमएसटी में से आया हुआ है, जो ये वाला भी पॉइंट है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। उसके बाद में आगे आपसे जो अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कंप्लायंसेस आर द मैकेनिज्म व्हिच आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द वायलेशन ऑफ द स्टेट रूल्स, इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इसको ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन डिफरेंट इंटरनल कंप्लायंस मैकेनिज्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका जो आंसर है वो क्लियर नहीं है यार। ठीक है, इसके अंदर अगर लिखना भी है तो चैप्टर नंबर 10 से ही आपको लिखना पड़ेगा कि चैप्टर नंबर 10 से ही पूछा ये क्वेश्चन उन्होंने, बट इसका कोई आंसर नहीं दिया वहाँ पे कि पॉइंट दिया स्पेसिफिक कि अलग अलग इंटरनल कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या होते हैं। बट एक चीज वहाँ पे दी है जो आप लिख सकते थे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्लायंस दिए इंटरनल और एक्सटर्नल।
उसके अंदर आपको 3 बातें बताइए, वो आप लिख सकते थे 1 मिनट। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के अंदर यहाँ पे आपको उन्होंने ये रहा इंटरनल कंप्लायंस के बारे में बताया, और इंटरनल कंप्लायंस के अंदर क्या क्या हेड्स होते हैं ब्रॉड, ठीक है, वो होता है प्रिवेंटिव पॉलिसीज, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव प्रोसीजर। तो अब ये इनके बारे में लिख करके आ सकते थे, तो इनकी हेडिंग और फिर खुद से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है इसके बारे में, ठीक है। सो एक्जेक्टली कोई पॉइंट नहीं यार कहीं पे भी चैप्टर में कि क्या इंटरनल कंप्लायंस के मैकेनिज्म्स होते हैं, बट ये जो है 3 चीजें आपको करनी चाहिए इंटरनल कंप्लायंस अचीव करने के लिए, है ना। ये 3 चीजें जो है प्रिवेंटिव पॉलिसीज होनी चाहिए, डिटेक्टिव कंट्रोल्स होने चाहिए और करेक्टिव प्रोसीजर होने चाहिए। तो यही क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब गाइडलाइन आंसर में हो सकता है कुछ और निकल करके आए, बट जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर अभी इस क्वेश्चन का हो सकता है वो मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट था वो था एक्सप्लेन की ड्राइवर्स ऑफ कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, है ना। ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे यार ये सब। की ड्राइवर्स जो है वो सीधे सीधे दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका पेज नंबर क्या है, 396। 396 पे दिया हुआ है आपको, 396। यहाँ पर ये है आपका रिपोर्टिंग वाला 396, ये रहा सम ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, है ना। तो ये आपको लिख करके आने थे सारे पॉइंट्स। उसके बाद अगला आपको दिया है थर्ड, अच्छा ये एक्सप्लेन की ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वाला पॉइंट आपका एमएसटी से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर वो की ड्राइवर्स वाला सब टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल। इन रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो डिफरेंस बिटवीन इनपुट कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल अलोंग विद द एग्जांपल्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ये आपको नहीं दिया हुआ है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। इसके बाद इन्होंने आपसे पूछा था इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इंक्लूड्स वेरियस कंटेंट एलिमेंट्स दैट आर फंडामेंटली लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कमेंट करना था। तो इसमें वही कंटेंट एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, पेज नंबर 404 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 404 यही आ जाएगा, ये रहा कंटेंट एलिमेंट्स। ये कंटेंट एलिमेंट्स लिख करके आने थे, और यही लाइन दे दी आपको उठा करके जो है लिखी है ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इंक्लूड्स 8 कंटेंट एलिमेंट्स दैट आर फंडामेंटली लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कमेंट। ये तो ये सारे लिख करके आने थे आपको। उसके बाद ये भी आपका एमएसटी से आया है, ठीक है ना। एमएसटी के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस वाला जो ये पूरा पॉइंट दिया है, ठीक है, वहीं वहीं से इन्होंने ये पूछा है आपसे। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस वाला ही पॉइंट है, उसी के अंदर ये आपका पूरा आ जाएगा, है ना। पूरा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस वाला जो पूरा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मेन हेडिंग चालू हो रही है और फिर ये सारी चीजें उसी के अंदर है, तो ये आपका कंटेंट एलिमेंट भी जो है इसी के अंदर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद बेनिफिट्स वाला दिया हुआ है अगला पॉइंट, ठीक है। सो बेनिफिट्स वाला आपको नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है फिर, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा पार्ट 4 के अंदर उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स व्हिच जनरली फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं इसके अंदर, तो ये जो है ये आपको दिया हुआ है एथिक्स एंड बिजनेस वाले चैप्टर में 426 के ऊपर, ठीक है। 426 पे आ जाते हैं यार, 426 ये रहा। 426 के अंदर यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये दिया हुआ है आपको द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैव बीन फाउंड टू ऑकर इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। जो भी कोड होता है कोड ऑफ कंडक्ट उसके अंदर ये सारे फॉलोइंग प्रिंसिपल्स यूजुअली देखे जाते हैं। तो ये जो चीज है ये लिख करके आपको आना था उसके अंदर। ये भी क्वेश्चन आपको एमएसटी से आया है, एथिक्स वाला जो ये आपका है चैप्टर, इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट से इन्होंने बनाया आपको। उसके बाद में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, पहले तो कॉन्सेप्ट समझाना था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको दिया हुआ है 470 पे दिया हुआ है ना, 470 ये रहा। यहाँ आप सारे आपको दिया सस्टेनेबल वैल्यू एडेड और ये सारी चीजें, इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये रहा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 से आया था ये। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझाना था आपको, फिर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया यार, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए कि नोपैट जो है कंपनी का, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नोपैट वो 2400 करोड़ है। कैपिटल जो एम्प्लॉय करी है कंपनी ने वो 8000 करोड़ है, और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वैक जो है WACC वो 15% है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालो, बहुत ही यार बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये, ठीक है। इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला दिया है आपको बुक के अंदर, ये रहा नोपैट माइनस इन्वेस्टेड माइनस ब्रैकेट में इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय WACC। तो आपको नोपैट का तो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 2400। 8000 आपका क्या हो जाएगा इन्वेस्टेड कैपिटल यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, और 15% क्या है WACC। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 1200 आएगा। 2400 में से 1200 माइनस करेंगे तो 1200 करोड़, ये आपका क्या बन जाएगा EVA बन जाएगा। ये भी आपका जो है एमएसटी के अंदर से आया था। एमएसटी के अंदर यहाँ पर 16 वाले में यहाँ देखो ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ये पूरा आपका जो है सॉल्यूशन है यार इस पेपर का, ठीक है। कुछ कुछ एक ही क्वेश्चन है बस जो आउट ऑफ द बॉक्स है, बाकी तो आप देखो सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो मॉड्यूल से ही आए हैं। और एक ये वाला भी बोल सकते हैं जो थोड़ा सा इनडायरेक्ट आया था ना, डिफरेंट इंटरनल कंप्लायंस मैकेनिज्म वाला, और एक इनपुट आउटपुट कंट्रोल वाला। बाकी सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से ही बने। प्लस आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये एनालिसिस देख करके कि यार मॉड्यूल पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बीच बीच में बॉक्सेस में से उन्होंने जो है क्वेश्चन बनाए हैं, वही की जो मॉड्यूल के अंदर लाइन दी है वही उठा करके कमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दी। तो ये सब जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई होप कि यार आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। एंड जो भी हमने डिस्कस करा है वो सिर्फ एडवाइजरी आंसर्स हैं, ठीक है। फिर तो देखते हैं एक्चुअली क्या आता है गाइडलाइन आंसर के अंदर। I hope you found this video helpful. Please make sure to subscribe to the channel so that you get these type of videos on timely basis.
Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.